Okay, let's continue with the activities of chapter 3, metals and non-metals. The activity 3.8 says that take a magnesium ribbon and some sulfur powder. Burn the magnesium ribbon, collect the ashes formed and dissolve it into water. Take the resultant solution with both, test the resultant solution with both red and blue litmus paper. Is the product formed on burning magnesium is acidic or basic? Now burn the sulfur powder. Place a test tube. Okay, what you have to do is you have to take magnesium and sulfur powder. First, you have to heat it, dissolve it, whatever you will get after heating, dissolve that into water and then check that solution, that whether it is acidic or basic. So let's do with first magnesium. When magnesium is burnt or heated, it will form magnesium oxide. And this is what? Ashes, white color ashes. Whenever magnesium burns, it burns with a dazzling white light. बहुत ही bright light से ये burn होता है. तो you get magnesium oxide in the form of ashes. ठीक है? इसको करो balance. Done. So after heating magnesium, you got magnesium oxide. So now this, whatever you got after heating magnesium oxide, dissolve this in water. So what we will get? We will get magnesium hydroxide. Now this is hydroxide. It is a strong base. So this is a strong base. So we know that strong base will, if you do litmus test with a strong base, what will happen? The red litmus will turn into blue. Okay, so here you got the answer of this. Is the product formed on burning magnesium is acidic or basic? This is basic. Fine. Okay, so this was done with magnesium. Now you have to repeat the same thing with sulfur powder. So when you will heat sulfur powder, after heating, what we get? We get sulfur dioxide. Now this sulfur dioxide we get in the form of fumes. मतलब gas fumes के form में हमें मिलेगा. Collect this gas fumes in a test tube and then add water to it. तो sulfur dioxide को जब हम water के साथ dissolve करेंगे, we will get sulfuric acid, H2SO4. Now this acid name itself says that what litmus test it will give? It will turn the blue litmus to red litmus. ठीक है? Okay. So here say, is the product formed on burning sulfur is acidic or basic? It is acidic in nature. Now can you write the equations for these reactions? We have done here. See, when magnesium is heated, you get magnesium oxide. This is the first equation. Then magnesium when dissolved in magnesium oxide when dissolved in water, you got magnesium hydroxide. Then when sulfur is heated, you get sulfur dioxide. And when sulfur dioxide is dissolved in water, you got sulfuric acid. Clear? Let's move to next activity, that is 3.9. Now this is a caution given here that this activity needs teacher's assistance. ठीक है ना? तो let's see what you have to do. Hold any of the samples taken above with a pair of tongs and try burning over a flame. Repeat with the other metal samples. Collect the product formed. Let the product and the metal surface cool down. Okay. You have to take few samples of metals. Let's see. Let's take sodium. Let's take aluminium, copper, iron, lead, magnesium, and zinc. Let's say we taken this samples of metals. Now what you have to do? You have to hold it with the tongue and then try to heat it. ठीक है? Okay. So after heating, whatever product you get, collect that product after heating it. Fine. So let the product of the metal cool down. Once you heat it, whatever product you get after heating it, let that product gets cooled. Let me give you an example of like if I take copper. Let's say copper. When it is heated, what you get? You get copper oxide. है ना? Copper oxide हुआ, इसको करो balance.
2 and 2. So whatever the product, like that, you will heat all the other metals also, and whatever product you get, let it cool down. Fine. Now what questions they are asking now? Which metal burns easily? Now when you see all these metals, what do you think? We know that sodium will burn easily. It's the most reactive metal, and even if you will keep it in open, if it is kept in open, it catches fire easily. Why? Because it's so reactive that it reacts with the oxygen immediately and catches fire. तो इसको हीट करने की भी जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही जलने लगता है. तो which metal burns easily? Sodium. Okay. Now what flame colors did you observe when the metal burned? तो कौन कौन से इतने सारे मेटल्स हमने ट्राई किए हैं, तो इन सब का फ्लेम का कलर क्या क्या है? Now when you will burn sodium, you will get an orange flame, aluminum will give white, copper will give you blue-green flame, iron will give you golden flame, likewise lead will burn with white, magnesium will dazzling white, means very bright white, and zinc will give the blue flame. So these are the flame colors you will get when you will burn these metals. Okay, fine. Now next is arrange the metals in decreasing order of their reactivity towards oxygen. Means all these metals which you have taken, arrange them in a decreasing order according to the reactivity towards oxygen. Means how they react with oxygen. You have to arrange it in a decreasing way. The first how decreasing order will be like sodium is the most reactive, then comes the magnesium, and then is the aluminum, and then is the zinc, okay, then comes the iron, then comes lead, and the least reactive is the copper. Now how will we know that? By testing we will, when you will do this activity, you will come to know. Otherwise, if the metals are given, you have already learned the reactivity series. Yes or no? Yes, we have that. So when you learn that reactivity series, if they give you the metals, you can easily arrange them according to their reactivity towards the oxygen. Correct? Fine. Let's see what is given in activity 3.10. And the question is given here that this activity needs teacher's assistance. Okay? So collect the samples of the same metals as in activity 3.9. Put small pieces of the sample separately in beakers half filled with cold water. Which metal reacted with cold water? Arrange them in the increasing order of their reactivity with cold water. Okay, you have to take few samples of metals as taken in 3.9. Let's see, we will take like potassium, sodium, then let's take calcium, magnesium, aluminum, and iron. Let's take lead, and also let's take copper and silver and gold. ठीक है, ये सैंपल्स हमने ले लिए. अब आपको क्या करना है? बीकर्स लेने हैं. ठीक है, जितने ये सैंपल्स हैं हमारे, उतने ही आप अलग अलग बीकर लोगे. उन सब बीकर्स में यू फिल द कोल्ड वाटर. ठीक है, कोल्ड वाटर फिल करके देन एड दिस 1 मेटल टू ईच बीकर. लाइक इसमें मैंने पोटेशियम डाल दिया, फिर सोडियम डाल दिया. लाइकवाइज हर एक में डालेंगे. विच मेटल रिएक्टेड विद कोल्ड वाटर? कौन सा मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा? सो दिस इज सोडियम एंड पोटेशियम. इट विल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्ट करेगा ही करेगा. साथ में दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पर लिबरेट होगी इन बोथ द केसेस. ठीक है, तो जब सोडियम रिएक्ट हुआ एंड पोटेशियम रिएक्ट हुआ वाटर के साथ, दिस इज हाउ यू गेट दिस. ठीक है, अब इतनी द हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो इवॉल्व्ड. नाउ दिस रिएक्शन इज सो एक्सोथर्मिक, इट्स हाईली एक्सोथर्मिक. इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि ड्यू टू दिस हीट ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे फॉर्म हुई है गैस, दिस विल कैच फायर. तो जब भी आप इन दोनों मेटल्स को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, यू कैन सी द फ्लेम्स इन द वाटर.
सो दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव। ठीक है, उसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बट वो एक रूम टेम्परेचर पे जब वाटर आ जाता है उसके साथ रिएक्ट करता है। एंड व्हाट यू गेट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट विथ विच वाटर, विद द वाटर विच इज एट रूम टेम्परेचर। अब उन्होंने कहा है कि ये जो वाटर के साथ, नॉर्मल वाटर ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, इनको आप किस ऑर्डर में करो, अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे कम है कैल्शियम, उसके बाद पोटेशियम, देन इज हाईली रिएक्टिव इज सोडियम। ठीक है, सोडियम और सोडियम को जैसे ही आप वाटर में डालोगे, कोल्ड वाटर में डालोगे, यू कैन सी द फायर फ्लेम्स इन द वाटर। तो डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर? यस। ठीक है, ओके। नाउ डज एनी मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम? ठीक है, जैसे आपने इन मेटल्स को वाटर में डाला, डज एनी मेटल फ्लोट्स ऑन वाटर? यस, दो मेटल हैं जो फ्लोट करते हैं, एक है आपका कैल्शियम एंड द सेकेंड वन इज मैग्नीशियम। क्या होता है, लुक हियर फ्रॉम द इक्वेशन इटसेल्फ यू विल अंडरस्टैंड कि देखो, जब कैल्शियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, यू गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। Same way when magnesium, it will react with hot water now. When magnesium reacts with hot water, what happens? You get magnesium hydroxide and hydrogen gas is produced. तो दोनों ही केसेस में हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हुई, ये अब बर्न नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर हीट प्रोड्यूस नहीं हुई है। इस केस में हीट प्रोड्यूस हुई थी, तो ड्यू टू दैट हीट ये हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी, ये बर्न हुई थी, इसलिए फायर फ्लेम्स आए थे। इन केस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्या होता है, हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होती है, बट वो बर्न नहीं होती है। ठीक है, तो बर्न नहीं होती है तो क्या होता है, जैसे ही आप इसको, मान लो ये एक बीकर है, ठीक है, कैल्शियम इसमें डाला हमने, बीच में वाटर है, तो जो हाइड्रोजन गैस होगी उसके बबल्स क्या करेंगे, इस कैल्शियम मेटल के आसपास स्टिक हो जाएंगे। तो इस तरह वो कैल्शियम मेटल क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा वाटर के सरफेस पे। सेम थिंग विल हैपन विद मैग्नीशियम, बट मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। ठीक है, ओके। Put the metals that did not react with cold water in beakers half filled hot water. ठीक है, हमें पता है कि कोल्ड वाटर में कौन कौन से मेटल्स रिएक्ट हो गए, किस किस ने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन किया, एक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। अब रेस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं उनको किसके साथ ट्राई करना है हमें, हॉट वाटर के साथ। तो मैग्नीशियम ने हॉट वाटर के साथ रिएक्ट किया, वी हैव जस्ट सीन जस्ट नाउ। Now for the metals that did not react with hot water, arrange the apparatus as shown in figure 3.3 and observe the reaction with the steam. ठीक है, अब ये जो मेटल्स रह गए मैग्नीशियम के बाद, ये एल्युमिनियम, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सबको अब किसके साथ रिएक्ट कर टेस्ट करेंगे हम, स्टीम के साथ, क्योंकि ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो सी दिस इज द apparatus सेटअप फॉर व्हाट, फॉर एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिया आपने टेस्ट ट्यूब में, देखो यहाँ पे ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर। अब वाटर में सोक क्यों किया है, क्योंकि व्हेन यू विल हीट इट, यहाँ से वेपर्स प्रोड्यूस होंगे, और जिस मेटल का आपको रिएक्शन देखना है स्टीम के साथ, दैट मेटल सैंपल यू विल प्लेस इट हियर, सी। ठीक है, जैसे ही स्टीम के साथ ये मेटल रिएक्ट करेगा, मान लो आई हैव टेकन एल्युमिनियम, व्हेन दिस एल्युमिनियम विल रिएक्ट विद वाटर, व्हाट विल हैपन, you will get aluminium oxide plus hydrogen gases release। See, ये देखो यहाँ पर bubbles है पानी में, this is hydrogen gas। Same thing, check with zinc, will give you zinc oxide, iron will give you iron oxide, and in all the three cases hydrogen gas is produced। Now अब cold water के साथ जिन metals ने react किया है और steam के साथ जिसने react किया है, उनमें क्या difference है, see the difference। यहाँ देखो, let me change the pen color so that it will become easy for you। okay, यहाँ देखो, sodium और potassium when it reacted with cold water they form hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide। कैल्शियम ने जब वाटर के साथ रिएक्ट किया, it formed calcium hydroxide।
मैग्नीशियम ने जब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो वाटर के साथ जिन मेटल्स ने रिएक्ट किया उन्होंने हाइड्रोक्साइड्स बनाए, लेकिन जब स्टीम के साथ जिन मेटल्स ने रिएक्ट किया उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने ऑक्साइड्स बनाए। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट आर दे आस्किंग यू नेक्स्ट, व्हिच मेटल्स डिड नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम। ठीक है, स्टीम के साथ भी कुछ मेटल्स हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं। कौन से मेटल्स हैं वो है जैसे आपका हो गया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड लेड। तो ये जो मेटल्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, दे डू नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, दे डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम, सो दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, अब कहाँ है, अरेंज द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद वाटर। अब आपके पास मेटल्स की पूरी सीरीज, अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, है ना। वाटर के साथ पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फिर उसके बाद आ जाता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद आयरन, ठीक है, लेड एंड देन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड सो। Let's see what's given in activity 3.11. Collect all the metal samples except sodium and potassium again. You have to take some metals, okay? But don't take sodium and potassium. Why? Because they react vigorously with cold water. तो वो dangerous है, it reacts vigorously with the cold water, तो हमें ये नहीं लेने। ठीक है, तो इन samples को लेके क्या करोगे आप, rub them clean with sandpaper, okay? Put the sample separately in test tubes containing dilute hydrochloric acid. तो आप क्या करोगे, आप चलो कौन से मेटल्स हम ले लेते हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम और पोटेशियम को छोड़ के। लेट्स टेक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। लेट्स टेक 4 टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, और हर एक में क्या डालेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिमेंबर दिस एसिड इज डाइल्यूट, ओके। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद नाउ ऐड दिस मेटल सैंपल, मैग्नीशियम को इसमें डालो, इसमें एल्यूमिनियम को डाल दो, लाइकवाइज जिंक एंड आयरन। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें अब आप इन टेस्ट ट्यूब्स में यू सस्पेंड थर्मोमीटर्स इन द टेस्ट ट्यूब्स सो दे बल्ब, जो इनका थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो एसिड में डिप होना चाहिए। थर्मामीटर डाल दिया। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली। अब क्या होगा, जैसे आपने HCl में आपने मेटल को डाला तो बबल्स फॉर्म होने लग जाएंगे। तो वो बबल्स की स्पीड कौन सी टेस्ट ट्यूब में, सारे ही ये मेटल्स जो हैं बबल्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब क्यों बबल्स फॉर्म करेंगे, क्योंकि देखो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वो तो HCl एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स जो सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, दे विल नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपकी ये जो मेटल्स हैं ये सारे रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, इसलिए ये सभी रिएक्ट करेंगे। और कैसे पता लगेगा कि ये रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्योंकि सब में बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। और कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्ट करेगा, जिसमें ज़्यादा बबल्स आएंगे। तो दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग, विच मेटल रिएक्टेड विग्रेसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो मैग्नीशियम है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो इस तरह आपको याद रहेगा कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। नाउ विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर। ठीक है, मैग्नीशियम। फाइन, नाउ अरेंज द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड्स। तो हमें ये जो 4 मेटल्स लिए इनको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है। तो क्या कैसे आएगा, सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, उसके बाद एल्यूमिनियम है, देन इट इज जिंक एंड देन इट इज आयरन। ओके, फाइन। नाउ लेट्स सी व्हाट्स गिवन इन 3.12। टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल। तो 2 नेल्स लेनी है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, या प्रेटिस सेटअप में देखो आपने क्या लिया है, यहाँ पे लिया है आयरन नेल और यहाँ पे लिया है कॉपर नेल, कॉपर वायर। ठीक है, पुट द कॉपर वायर इन अ सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो जो कॉपर वायर है उसको हमने किस में डाला है, आयरन सल्फेट में डालना है।
और जो आयरन नेल है वो डालना है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके। नेल इन अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, टेक अ टेस्ट ट्यूब, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट्स। अच्छा, हमने ऐसे सोल्यूशंस लिए, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आयरन नेल डाला और आयरन सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर वायर डाली। नाउ आफ्टर 20 मिनट्स we will see the observations. Now what observations you will see? That you will find that ये जो कॉपर वाली, ये वाला जो टेस्ट ट्यूब है जहाँ पे आपने कॉपर वायर डाला था आयरन सल्फेट सोल्यूशन में, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। You will not see any reaction in this, whereas reaction will take place in this test tube. तो आप कैसे बता सकते हो कि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है? क्योंकि इस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, ये जो आपका ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का जो ब्लू कलर है, इट विल स्टार्ट फेडिंग अवे, ये फीका पड़ने लग जाएगा एंड इट विल चेंज इनटू ग्रीन इन कलर। तो ये जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, इट विल टर्न इनटू ग्रीन कलर। तो ये जो चेंज इन कलर होगा, दैट शोज दैट कि वहां पे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं क्या क्या पूछा है। इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड द रिएक्शन इज ऑकर्ड? ओके, तो फर्स्ट हम क्या बोलेंगे कि इट हैपन जहां पे आपने आयरन की नेल डिप करी थी। किस में डिप करी थी? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप की थी हमने, उस टेस्ट ट्यूब में द रिएक्शन ऑकर्ड। ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट द रिएक्शन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस? किस बेसिस पे आप बोल रहे हो कि रिएक्शन हुआ है? जस्ट नाउ आई टोल्ड यू द कलर, द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर है, इट विल फेड अवे, वो ब्लू कलर फेड होने लगेगा एंड इट विल टर्न इनटू ग्रीन कलर। ओके, फाइन। Can you correlate your observations for the activities 3.9, 3.10 and so on? तो यहाँ पे क्या है? राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, अब कोरिलेट कैसे करेंगे? कि यही है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लो रिएक्टिव मेटल को। अब यहाँ पे उन्होंने बैलेंस्ड इक्वेशन पूछी, अब यहाँ पे लिख देते हैं कि कैसे हाई रिएक्टिव कैसे। जैसे आयरन को आपने डिप किया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तो क्या मिला हमें? हमें मिल गया FeSO4 प्लस कॉपर सेपरेट हो गया। अब क्या हुआ? ये जो आपका आयरन था दिस वाज ग्रे इन कलर, कॉपर सल्फेट जो था दैट वाज ब्लू इन कलर। तो बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, आयरन डिस्प्लेस्ड कॉपर। तो क्या मिल गया हमें यहाँ? आयरन सल्फेट। और ये किस कलर में होता है? दिस इज समवॉट रेडिश, सॉरी दिस इज इन ग्रीन इन कलर, और ये जो कॉपर है दिस इज रेडिश ब्राउन इन कलर। ठीक है, फाइन। सो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दिस शोज दैट द more reactive metal displaces the less reactive metal. Now name the type of reaction. This we know, this is displacement reaction. Clear? Okay. Now the activity 3.13. What does it says? Take samples of sodium chloride, potassium iodide, barium chloride. ठीक है, or any other salt from the science lab. What is the physical state of these salts? We know that these salts are in solid state. Take a small amount of sample on a metal spatula and heat directly on the flame. Repeat with other samples. Okay, हमने ये तीनों लिए, हमने इस स्पैचुला में इसमें डालेंगे और उसको डायरेक्टली हीट करेंगे। ठीक है, अब हीट करने के बाद क्या होगा? What did you observe? Did the samples impart any color to the flame? तो जब आप इन तीनों को, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड को हीट करोगे, तो क्या हीट करने पे फ्लेम का कलर जो होगा, कोई कलरफुल फ्लेम्स आएंगी? दैट यू हैव टू सी। डिड द सैंपल, ओके, डू दीज कंपाउंड्स मेल्ट? सबसे पहले तो ये याद रखो कि ये जो है इट विल नॉट मेल्ट, द कंपाउंड्स विल नॉट मेल्ट। अब क्यों? अब बताते हुए, ये जो सॉल्ट आपने लिए है ऊपर, दे हैव आयोनिक बॉन्ड, दे आर आयोनिक कंपाउंड्स।
तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कौन सा बॉन्ड होता है, उसमें होता है आयोनिक बॉन्ड। तो दिस आयोनिक बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसको ब्रेक करने के लिए वी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो ये इतने से गर्म करने से मेल्ट नहीं होंगे, बिकॉज आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए वो मेल्ट नहीं होंगे। ठीक है, ओके। अब क्या है कि कलर इंपार्ट करते हैं, तो हम यहाँ देखो सोडियम क्लोराइड को बर्न करोगे तो इट विल गिव गोल्डन येलो फ्लेम, पोटेशियम आयोडाइड विल गिव यू वायलेट फ्लेम एंड बेरियम क्लोराइड विल गिव यू ग्रीन फ्लेम। ठीक है, ओके। Now make a circuit. Now try to dissolve the samples in water, petrol and kerosene. Are they soluble? Okay. ये जो आयोनिक कंपाउंड्स है ये सिर्फ वाटर में डिसॉल्व होंगे, दे विल नॉट डिसॉल्व इन केरोसिन और पेट्रोल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर, इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स इनटू सॉल्यूशन ऑफ वन सॉल्ट। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? टेस्ट द अदर सैंपल्स टू इन दिस मैनर। What is your interference about the nature of these compounds? ठीक है, उसके बाद क्या किया है, इस तरह हमने सेटअप किया है एपरेटस का, इलेक्ट्रोड्स डाले हैं, ग्रेफाइट रॉड डाली है, सॉल्ट सोल्यूशन जो ऊपर दिया ना, पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, 1 by 1 हम ये सॉल्ट सोल्यूशन डालेंगे इसमें। और फिर जैसे ही आप क्या देखना है आपको कि whether the bulb will glow or no. Yes, in all the 3 cases आप कोई भी सॉल्ट डालो, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड, कोई भी सॉल्ट डालो, the bulb will glow। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये आयोनिक कंपाउंड्स है। ये जो सॉल्ट आपने लिए हैं दीज आर आयोनिक कंपाउंड्स, और आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो ठीक है, तो इसलिए बल्ब विल ग्लो इन ऑल द 3 केसेस। अब लास्ट में उन्होंने क्या पूछा है कि इंटरफेरेंस अबाउट द नेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स। अब आपको इन शॉर्ट आपको बताना है कि ये जो आपने आयोनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा है, ये जो सॉल्ट्स लिए हैं जो कि आयोनिक कंपाउंड्स हैं, इनके बारे में व्हाट कैन यू से? द फर्स्ट थिंग यू कैन से इज दे आर सॉलिड एंड हार्ड। ठीक है, ये सॉलिड होते हैं। सेकेंड चीज हमने पढ़ी कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, वो इतने से गर्म करने से मेल्ट नहीं होंगे। और थर्ड चीज आपने देखी कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में तो सॉल्युबल है, बट व्हाट अबाउट केरोसिन एंड पेट्रोल? दे आर इनसॉल्युबल इन पेट्रोल एंड केरोसिन। ठीक है, और क्या पढ़ा आपने कि जो आयोनिक कंपाउंड्स है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स है, इनके अंदर आयंस है और आयंस मूव करते हैं, फ्री मूविंग आयंस है, दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? So now we can do the last activity of this chapter, that is 3.14. Take 3 test tubes and place clean iron nails in each of them. Label these test tubes A, B and C. Pour some water in test tube A. Okay. Pour boiled distilled water in test B. Add about 1 ml of oil and cork it. The oil will float on the water and prevent the air from dissolving in the water. Put some anhydrous calcium chloride, anhydrous calcium. Leave the test tube for a few days and then observe. Okay. अब ये लिया हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। तीनों में what we have added iron nail. तीनों में हमने डाला है आयरन की nails. फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में we have added water, simple water we have added, ठीक है, तो ये रख दिया हमने। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में what we have added जो वाटर है, हॉट वाटर हमने डाला है, हॉट बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर डाला है। फिर उसके ऊपर से एक लेयर डाल दी है किसकी? ऑयल की, दिस लेयर। अब ये लेयर क्या करेगी ऑयल की? इट विल प्रिवेंट दिस एयर टू गेट इनटू द वाटर। अब बॉइल्ड वाटर क्यों लिया है? ताकि इसके अंदर की जो एयर है बॉयल करने से वो पूरी तरह से निकल जाए। तो एयर जो है वो सिर्फ इतने पार्ट में है, वो वाटर के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या डाल दिया है? ऑयल डाल दिया। तो ऑयल विल प्रिवेंट
this air to enter into the water. Third test tube में what you have done is you have taken the iron nails, फिर उसके अंदर डाल दिया है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. ये ड्राइंग एजेंट है, मतलब इस हवा में जितना भी मॉइस्चर होगा ये क्या कर लेगा, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा पूरा. तो ये ड्राई एयर है, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है. तो आफ्टर फ्यू डेज आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो फर्स्ट वाली ए के अंदर जो नेल थी इसमें रस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी, ये रस्टेड होगी. whereas the nails in B and C they will not get any rust. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए from this activity we come to know about the condition of rusting. कि rusting के लिए हमें क्या क्या चाहिए, both air and water, मतलब moist air चाहिए. B में देखो सिर्फ water के टच में थी ये nails, air नहीं था. और C वाली टेस्ट ट्यूब में you have air but you don't have any moisture, no water. तो इन दोनों में कोई रस्टिंग नहीं हुआ. So for rusting the condition is you should have both the air and water. That means moisture और हवा का होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है? With this we completed the chapter, and in the next video we will start the next chapter. I think that is carbon compounds. Carbon and its compounds. If you like the video, do share, like and subscribe. Thank you.